Got it? They have more expert knowledge of the subject. This is because वहां पे because करके लिखो, because ministers are elected. पेंसिल से लिखते जाना अगर बुक में नहीं मिलेगा तो. Ministers are elected, या नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है, ministers are elected by the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. ये पूरा हम एकदम शॉर्ट कर दिए. What is the difference between permanent executive and political executive? है ना? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, what is the difference between political and non-political executive? So like that the questions may differ, but the answer you will write in a same way, because yesterday what you had learned in this, I had explained you that permanent executives are appointed on the basis of selection basis, that is competitive examination. They go for competition and then they used to have a knowledge, and on the basis of knowledge they are appointed. All right, on the basis of knowledge they are appointed, and they will remain in power till they have retire, till the age of 60 or 62, whatever the retirement age will be. So on the basis of knowledge they used to help the ministers. Ministers are very powerful because they are directly elected by the people and they work on behalf of the people. All right. So it is like that, different ways of working. So when you will write the difference, now as a homework, you prepare your answer. What is the difference between political executive and non-political executive? Or you may write what is the difference between political executive and permanent executive. अब इसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करो अपने आंसर को, क्योंकि इतना ही दूर में सारा लिखा हुआ है. And you have to answer your question. So how you answer, you can write it. All right, the way you answer, लिख के देखते कौन बच्चा पहले भेजता है. लिख पाओगे? जल्दी बोलो. देखेंगे. यस मैम. काजल लिख लेगी. कीर्तिमान बोला यस मैम लिख लेंगे. आयुषी, अभिमन्यु, अभिनव, अभिषेक, माइक ऑन करो और आंसर दो. Will you able to write the difference? Yes, ma'am. All right. Kritya, Adarsh, Shubham, Sahil, Piyush Kumar. Okay. आगे बढ़े. Now next topic, the Prime Minister and the Council of Ministers. Start करें यहाँ से या इस टॉपिक को Yes, ma'am. एक बार रेफर बता दे. इस टॉपिक को फिर से बताएं या आगे बढ़ें? जल्दी बोलो. मैम आगे बढ़िए. Yes, ma'am. आगे बढ़िए. Prime Minister and Council of Ministers. Write down here a very important question which is in your board exam. It may be repeated and re-repeated. That is, how is Prime Minister elected? How is Prime Minister elected? What are his power and function? देखो ये तीन क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं,
How is Prime Minister elected? What is his power and function? दूसरा, how is President elected and what is his power and function? और तीसरा, how is the Chief Justice of India elected and what are his power and function? Judiciary. How is our judiciary or Chief Justice is elected and what is the power and function of the judiciary of India? ये तीनों क्वेश्चंस को उसके पहले पार्लियामेंट का भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में से एक तो जरूर आएगा बोर्ड के लिए फाइनल में, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस वी विल नॉट सेट, इट विल कम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड बिकॉज योर रजिस्ट्रेशन हैड बीन मेड, you have done your registration from CBSE, so your question will come from there only. We will not set the question. All right, so you can prepare the answer. Any one will be there in your exam. It may be parliament, it may be prime minister, it may be president, or it may be judiciary. So the 4 important questions you have to prepare from this chapter. All right. Now let's start from the president appoints the prime minister. See your book, Prime Minister and Council of Ministers. The president appoints prime minister, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leader. Change the point. Every point should be changed. 1, 2, 3, 4. And it will be easy to learn. The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands majority in Lok Sabha as a prime minister. Now change the line and write, in case agar no single party or alliance matlab coalition government gets majority, the president appoints the person most likely to secure majority support. President खुद से फिर अपॉइंट करेगा जिस आदमी का सबसे ज्यादा मेजॉरिटी रहेगा लोकसभा में, उसी को वो प्राइम मिनिस्टर बना देगा। ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर कहा गया। प्रेसिडेंट को ऐसे बहुत सारा पावर नहीं मिला है, लेकिन इस पावर को डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वेयर ही टेक्स एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, क्योंकि हर जगह प्रेसिडेंट खुद कभी डिसीजन नहीं लेता है, प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से वो हर काम कर रहा है ना। जो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता है या प्राइम मिनिस्टर का जो सपोर्ट होता है, एडवाइस होता है, on that basis the president works. But in this matter, appointment of the prime minister, sometimes he used to take a discretionary decision, that is independent decision from not asking or referring to anyone. He continues, the prime minister does not have a fixed tenure. मतलब अगर prime minister no confidence motion में आ गया तो वो 5 years के पहले ही रिजाइन कर देगा, और अगर रिजाइन किया तो उसके पीछे पीछे सारा कैबिनेट रिजाइन करेगा, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पूरा लोकसभा रिजाइन कर देगा। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ थिंग्स यू विल find here that the prime minister does not have a fixed tenure. जरूरी नहीं है कि वो पूरा 5 साल रूल करे। अगर वो बीच में नो कॉन्फिडेंस में आया तो he have to go out of the power. He continues in power as long he remains the leader of the majority party or a coalition. Coalition समझते हो ना, मिला जुला कर। अगर एक पूरे पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है, 273 सीट्स पूरा नहीं है एक पार्टी को, तो वो मिलाकर गवर्नमेंट बनाती है। मिलाकर मतलब जो पार्टी सपोर्ट करना चाहती है, जीता हुआ है, छोटा छोटा पार्टी है जो सपोर्ट करना चाहता है, रनिंग गवर्नमेंट में आना चाहता है, वो सपोर्ट करता है। एक ग्रुप तैयार हो जाता है जिसमें बहुत सारे पार्टीज के लीडर्स होते हैं, और ये पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं।
उसमें से अगर एक आदमी भी हट जाएगा ना तो सरकार गिर जाएगी। इसमें सब मिलकर आपस में रन करते हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर का वर्क देखो यहाँ पे क्या है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई भी आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज इलेक्टेड एज अ मेजॉरिटी लीडर ऑफ बीजेपी बाय प्रेसिडेंट। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो एट वंस अ पर्सन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर, ही नाउ बिकम्स अ हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन। उसके अंदर एक पावर आ जाता है जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है, वो प्लान करता है। अब प्राइम मिनिस्टर अपने बीजेपी का, नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जानते हैं कि जिसको जो वर्क दिया जाए उस फील्ड में वो बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना। तो अगर सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्टर बनाना है तो जो डॉक्टर हो सकता है, रिटायर्ड डॉक्टर, और जो इलेक्शन जीता है वो बन सकता है आराम से, है ना। बजट फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी को बनाना है तो जो आदमी इकोनॉमिक्स में वर्सेटाइल जीनियस होगा वो आराम से इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ के बजट बनाने में फाइनेंस मिनिस्टर बन जा सकता है। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसको थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा सा ज्ञान हो, आइडियाज हो, he will be under the sports minister. So like that, number of ministers are appointed by prime minister, supported by prime minister, by the president of India. जैसे एक आदमी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट खुद से बना दिया लीडर को प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते जाएगा, एडवाइस देगा और एडवाइस देगा कि लोकसभा की भी जो बीजेपी का जो जीता हुआ पार्टी उसमें से ये आदमी को चुनो, ये आदमी को चुनो। चुनते चुनते एड और एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक ग्रुप तैयार कर देता है और उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बन गया तो इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3। फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें लिखो कैबिनेट मिनिस्टर। चूंकि प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के हेड हैं, इसलिए अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फिर छांटेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और छांटते छांटते अ ग्रुप ऑफ 60, लेस देन 60 और मोर देन 60 मिनिस्टर्स को ये अपॉइंट करते हैं, है ना। और जो अपॉइंट किए उसमें से हर को एक एक पावर देते जाएंगे। एक रेलवे मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ये नेशनल लेवल का वर्क करेगा। ये जितने मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्लानिंग कमीशन, these ministers will work for nation. ये नहीं बोलेंगे कि ये स्टेट को ज्यादा फायदा हो, ये स्टेट को हो फायदा, नहीं, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, ओवल इंडिया लेवल गवर्नमेंट है। तो ये जो भी काम करेंगे ना पूरे कंट्री के लिए काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है इसलिए नेशनल लेवल का लॉ बनाएंगे। और ये जो नेशनल लेवल का लॉ बना, अब इसको हेल्प करने के लिए एक और ग्रुप बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उसको कहा जाता है डेप्यूटी कैबिनेट मिनिस्टर। डेप्यूटी मतलब जो वाइस मिनिस्टर, जो उसको हेल्प करता है। तो एक मिनिस्टर के, रेलवे मिनिस्टर के पास एक और मिनिस्टर है जो उसको सपोर्ट करे, 2 मिलके बनाएगा कोई भी लॉ उसको बना रहा है। और थर्ड जो ब्रांच निकला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उससे कुछ मिनिस्टर्स राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेंगे और राज्यसभा से जो होगा वो स्टेट से रिलेटेड होगा। तो जो भी लॉ बनेगा तो ये जो राज्यसभा के मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्ट अपने स्टेट में उस लॉज को पहुंचा सकते। उनका काम सिर्फ यही है, they will not make any laws or they will not plan for their country. They will do only one thing. Whatever laws has been made, that law should first reach to their state.
है ना, हमारे स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा उसका काम सिर्फ यही होगा कि नेशनल लेवल का जितना लॉ बना वो हमारे बिहार में सबसे पहले आ जाए। उत्तर प्रदेश का लीडर चाहेगा कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चले जाए। तो इस तरह से जो लीडर्स तैयार हुए, राइट, तो ये जो पूरा ग्रुप तैयार हो गया इसको कहा गया एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट का सेकेंड ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, ये एग्जीक्यूटिव हो गया। तो ये एग्जीक्यूटिव का ही तुम पढ़ रहे हो, दैट द एग्जीक्यूटिव, एक मिनट रुको, बैटरी डाउन हो रहा है। Now, this executive is made by these elected leaders, and these elected leaders will make laws related to our country. All right. Now, you can now understand what is given here. अब इसमें आगे हम लोग पढ़ रहे हैं. After the appointment of Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of Prime Minister. ये तो हम बताएं, इसको first point डालो. Second, the ministers are usually from the party or the coalition that the majority in Lok Sabha. दो तरह से पढ़ रहे हो. अगर बीजेपी जैसा अभी फुल मेजोरिटी लेके आ गया तो, और अगर पिछले बार जैसे कांग्रेस का मिली जुली सरकार थी यूपीए का, तो दोनों में पावर प्राइम मिनिस्टर्स के पास ज्यादा है. The Prime Minister is free, say third point mark करो. The Prime Minister is free to choose minister as long as they are the members of Parliament. A person who is not a member of Parliament can also become a minister. That is the private ministers. But such person has to get elected to one of the house of the Parliament within 6 months of the appointment at the minister. मतलब कि अगर कोई आदमी खड़ा हुआ इलेक्शन में, है ना, और या वो पार्टी से हटा, उसके जगह पे हम एक नया मिनिस्टर्स को ले आए, जैसे नीतीश कुमार कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, उनका इलेक्शन कहाँ आता, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है ना, तो वो कहाँ से इलेक्ट हुए, तुम लोग को पता है? जल्दी बता. इलेक्शन में तो वो भी कहीं नहीं से नहीं खड़े हुए हैं, फिर भी जब जीतेगा तो वो उसमें आ जाएगा चीफ मिनिस्टर बन के, बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली, ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. काउंसिल समझते हो, जैसे राज्यसभा सेंटर में है वैसे ही स्टेट में काउंसिल है, कहते हो ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. लोकसभा को कहते हो हाउस ऑफ द पीपल. यस तनिष्क. तो मैम तो नीतीश कुमार कहीं से इनडायरेक्टली तो इलेक्ट हुए होंगे तो राज्यसभा वही में तो जाने बोल के रहे हैं, लिए. वही ना बता रहे हैं तुमको, लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए ना. स्टेट में जो सेकेंड हाउस है वहां पे वो मेंबर हैं, और वहां से वो आए हैं हमारे. तो वो सब जो प्राइवेट, वो कैसे पार्टी में आ गए, तो पार्टी में जब आएंगे प्राइवेट मेंबर हो गए, अब उनको 6 मंथ्स के अंदर वोट दे देकर उसको अपना पार्टी का मेंबर बना लेगा सर, है ना. कैसे बनेगा कि जैसे एक और एग्जांपल तुमको हम बताते हैं. एक बार फॉर्डर स्कैम समझते हो ना, चारा घोटाला, जिसमें लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे बिहार के. ये इंसिडेंट बता रहे तुम लोग को. बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और देन ही वाज अंडर स्कैम, घोटाले में जब आए फॉर्डर स्कैम में, ही वाज गोइंग जेल, एंड एट दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. तो वो क्या किए, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अपनी वाइफ राबड़ी देवी को दे दिए. याद है, तुम लोग सुने होगे, अपने से बहुत छोटे होगे तुम लोग, बट यू मस्ट हैव नोन दिस.
राबड़ी देवी at that time she was not a member of RJD. वो इलेक्शन में भी नहीं खड़ी हुई थी. लेकिन when chief minister went to jail, लालू यादव, that post of CM was given to her wife राबड़ी देवी, है ना. अब देखो कि वो तो जेल में चले गए, तो उनका जो आरजेडी का मेंबर है वो चीफ मिनिस्टर को, राबड़ी देवी को 6 मंथ्स के अंदर वोट देकर अपना वोट दिया सबको, क्योंकि हम लोग तो जो मेंबर है उसको चुने हुए थे, पीपल से डायरेक्टली इलेक्टेड है. अब वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे जब आ गई तो अब उसको प्रूफ करना था अपना मेजॉरिटी कि हम भी इसी हाउस के हैं, तो वो 6 मंथ्स के अंदर उसको प्रूफ कर देना था. तो आरजेडी का जितना मेंबर था सब अपना वोट उसको दे दिया, वोट दे दिया. देखना पार्लियामेंट सेशन इस सब में वोट कैसे होगा, सब कोई ऐसे ऐसे करके वोट देता है और स्क्रीन पर पूरा आ जाता है कि द वोट हैज बीन कास्टेड. तो जब मेजॉरिटी उसको मिल गया 6 मंथ्स के अंदर, तो शी बिकेम अ फुल फ्लेजेड लीडर मेंबर ऑफ दैट आरजेडी एंड शी वाज आल्सो ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. तो कोई भी अगर प्राइवेट मेंबर, अगर हम भी किसी चीज के लिए चुनाते हैं और हम पार्लियामेंट में चले गए या लेजिस्लेटिव में, तो हमको वहां पे अपनी पॉपुलैरिटी शो करना है कि आई एम पॉपुलर और अनपॉपुलर. तो वो पॉपुलैरिटी हम कितने दिन में शो करेंगे? 6 मंथ्स में. और रनिंग गवर्नमेंट का हमको फुल मेजॉरिटी मिलना चाहिए, तभी हमारा वहां पे सीट बुक हो जाएगा और हम प्राइवेट मेंबर से एक मिनिस्टर के नाम से जाने जाएंगे, एक पॉलिटिकल लीडर में मेरा नाम आएगा. तो सेम यहाँ पे वही चीज लिखा है कि अगर मान लो नरेंद्र मोदी लोकसभा के अलावा किसी भी और एक आदमी को चुनते हैं बाहर से कि इसको भी हम रखेंगे, तो उस आदमी को 6 मंथ्स के अंदर अपना मेजॉरिटी प्रूफ कर देना होगा. तो बीजेपी का चूंकि आया बीजेपी में, तो बीजेपी का हर मेंबर उसको अपना वोट दे देगा. तो क्या बोलोगे कि ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड? What will be the answer? Indirectly. Yes, they are indirectly elected. So here it is written that a person who is not member of parliament or not member of legislative assembly, जैसे नीतीश कुमार, he is not the member of legislative assembly, he is a member of legislative council. But if his party appoints कि हम उस आदमी को जो member of council उसको CM बनाएंगे, तो his party will prove him in majority within 6 months. और दे देगा ही वोट अपना. इसीलिए देखो यहाँ लिखा है, such a person has to get elected to one of the house of parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, within 6 months of appointment as minister. So when Rabdi Devi became chief minister of Bihar, within 6 months she proved that she is an active member of RJD and she remained in the post of chief minister. Now council of minister, prime minister प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया और एक ग्रुप तैयार हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटे हैं? 3 पार्ट्स में. अब देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर. व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ऑफिशियल नेम. इट इज यूजुअली हैव 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स, है ना, डिफरेंट रैंक्स. अब इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कौन? Prime Minister of India, because he is the head of Planning Commission. तो वो बहुत सारा डिपार्टमेंट्स बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर. और देखना जब शपथ ग्रहण होता है, जब ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसी के पहले प्राइम मिनिस्टर डिस्क्लोज करते हैं कि हमने किस आदमी को, किस लीडर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया है. बिकॉज ऑल दीज लीडर्स आर गोइंग टू बी अ लीडर ऑफ अ नेशनल लेवल, राइट? नेशनल लेवल लॉज बनाएंगे वो. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मार्क हियर, कैबिनेट मिनिस्टर्स पहला जो हम बताए आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज. सेकेंड मार्क करो, मेजर मिनिस्ट्रीज मतलब
national level ministers. The cabinet ministers meet to take decision in the name of council of minister. थर्ड, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन थर्ड पॉइंट जरूर को सेकेंड में करके लिखना. Cabinet is thus the inner wing of the Council of Ministers and it comprises about 80 ministers, 20 ministers or more. The 60 departments है, 60 से भी ज्यादा बन सकता है, 60 से भी कम बन सकता है, क्योंकि 80 ऑल टुगेदर मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. सो लाइक दैट दे गो ऑन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. तो एक्चुअल गवर्नमेंट इतना सारा इलेक्शन हुआ, 543 मेंबर्स को हम चुने, 2 मेंबर को नॉमिनेट किए प्रेसिडेंट, है ना, तो 545 हो गया. 545 को जस्ट हम हाफ करें, 272 पॉइंट कुछ आता है, तो 273. किसी भी पार्टी को इतना वोट मिल गया तो वो सिंपल मेजॉरिटी से जीत गया. 2 तरह का मेजॉरिटी होता है, सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. अभी इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा 10 तारीख को, तो देखना कि सिंपल मेजॉरिटी से जीता है या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक पार्टी से एक भी ज्यादा वोट मिला किसी से तो सिंपल मेजॉरिटी हुआ. और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हुआ कि ऑपोजिशन, तीन आदमी खड़े हैं, एक आदमी को 60 वोट मिल गया तो वो तो जीत गया. एक आदमी को 20 मिला, एक आदमी को 20 मिला, एक पार्टी को, तो जो हारा हुआ दोनों है उसके वोट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो भी वो जीते वाले से कम होगा. तो इसको कहा गया कि दिस पर्सन हैव विन विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. उसको कहा जाता है स्वेप्ट द वोट, पूरे वोट को उड़ा लिया, स्वेप्ट द वोट और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ऑलराइट, सो हियर you will mark the second wing of the cabinet, the minister of the state with independent charges. It is usually in charge of smaller ministers. They participate in cabinet meeting only when specially invited. ये जो हम थर्ड बताए थे मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो है इसमें, वो इसमें आ रहा है. और लास्ट देखो, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, they are attached to and required to assist means help the cabinet ministers. इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखो deputy ministers. Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. तो cabinet meetings कब होता है? साल में 2 बार, मीन्स 6 months के गैप में होता है. समर सेशन, विंटर सेशन, एक गर्मी के दिनों में और एक ठंडे के दिनों में, 6 महीने का गैप के बीच में होता है. और इस 6 month के गैप में ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो नेशनल लेवल्स का लॉ बनाते हैं, ये यही डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या काम किया. ऑपोजिशन इसी समय बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है रनिंग गवर्नमेंट से, क्योंकि ऑपोजिशन हमारे कंट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है जो जनता के पास रिपोर्ट लेकर आता है कि रनिंग गवर्नमेंट कैसे सरकार चला रही, जो प्रॉमिस किया है उस एजेंडा पर चला रही है या नहीं चला रही. That is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government. Not say most countries, in India we say cabinet form of government. क्योंकि हमारा इतना सिलेक्शन इलेक्शन होने के बाद भी हमारा अभी तक, हम लोग कहते हैं ना कैबिनेट गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर्स जो नेशनल लेवल के लॉ बना रहे हैं वही मिनिस्टर्स हमारा एक्चुअल गवर्नमेंट है. The cabinet works as a team of leaders. एक ग्रुप हो गया.